Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Rain, Thunder and Lightning. Introduction. Natural phenomena are known as cyclic phenomena. Sun rises in the east in the morning and sets in the west in the evening. This repeats daily. Our earth also rotates on its axis. Each year we experience the hot summer season during April, May and June and cold winters in November, December and January. Rains fall during July, August and September. The repetition is because of the cyclic motion of the earth. अच्छा, जो आपके नेचुरल फिनोमेना होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक फिनोमेना. जैसे कि आप देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. हर साल हम समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं. आपका अप्रैल में एंड जून में कोल्ड विंटर्स एक्सपीरियंस करते हैं. आपका नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. रेन आपकी जनरली आती है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो रिपीटेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द साइक्लिक मोशन ऑफ द अर्थ. वाटर इज अ वाइटल फॉर्म फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. All life processes require water. Moon has no air or water, hence there is no life on it. Water is liquid at room temperature. It does not have a fixed shape. Although a liquid has a fixed volume, but it takes the shape of the vessel in which it is kept. Water हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. आपके मून पे वाटर और एयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है. वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है. आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Water is specific because it is an exclusive substance which exists in all 3 states. If you cool water in a freezer, it converts into its solid form, ice. If we leave it at room temperature, it melts and converts into its liquid state again. On heating, a liquid is converted into vapor or gaseous state. Water vapor that rises from boiling water is known as steam. The process of converting liquid water into vapor form on heating is called evaporation. अच्छा देखिए, वाटर एक लौता ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है. आप वाटर को फ्रीजर में रख देंगे, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी आइस में. अब उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में फिर कन्वर्ट हो जाएगा. और जब आप उसे हीट करेंगे तो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैसियस स्टेट में. तो ये जो प्रोसेस होता है आपका, जिसमें लिक्विड वाटर आपका वेपर फॉर्म में चेंज होता है ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. On cooling, the vapors change into liquid once again by the process of condensation. The ice, liquid water and steam are considered as the 3 states of water. और देखिए, कूलिंग पे क्या होगा, जो वेपर हैं आपके वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो इसे कहा जाता है आपका कंडेंसेशन. Evaporation. When water is heated, it changes from liquid to gas. This gas is known as water vapor and the process is known as evaporation. Water consequently evaporates from water bodies like lakes, rivers or oceans when the sun heats up water in these water bodies. Water vapors are water molecules changed to gaseous form. You might have seen that wet clothes after a certain time get dried. The water in the clothes evaporates and gets mixed with the air. अच्छा देखिए, वाटर आपका हीट होता है और हीट होके वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इवेपोरेशन आपका प्रोसेस है. वाटर आपका जो है वाटर बॉडीज से, जैसे कि लेक्स है, रिवर्स है, ओशन, इनसे भी इवेपोरेट होता है, राइट. फिर वाटर वेपर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि आपके वेट क्लॉथ्स थोड़ा टाइम पे सूख जाते हैं, तो जो वाटर होता है क्लोथ में वो इवेपोरेट हो जाता है और फिर वो मिक्स होता है किसके साथ? विद द एयर. Water vapor in a huge quantity escapes into the atmosphere where it is retained by the air as moisture. The amount of water in the air is defined as the humidity. Another parameter that indicates the amount of water vapor in the air is called dew point. At this point, the air becomes saturated with water vapor. अच्छा देखिए, आपका जो वाटर वेपर ह्यूज क्वांटिटी में होता है वो आपका एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाता है, राइट. एंड जो अमाउंट होता है आपका वाटर का एयर में, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. दूसरा पैरामीटर जो इंडिकेट करता है वाटर वेपर के अमाउंट को एयर में, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, है ना. तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो एयर है वो सैचुरेटेड होती है विद वाटर वेपर. कंडेंसेशन. व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, इट राइजेस इनटू द कूलर एयर, कलेक्ट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड. द वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स कूल डाउन एंड चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब अगेन आपका जैसे वाटर इवेपोरेट हुआ है वो राइज अप होगा, ओके, उस कूलर एयर में फिर कलेक्ट होगा, क्लाउड्स बनेंगे. फिर जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स है कूल डाउन होके फिर से वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एक्टिविटी 15.1. Take a glass of water, put some ice cubes in the glass so that it becomes cool. Keep the glass out in the sun for some time. What do you see? You will see that water droplets form on the outside of the glass. That water actually came from the air. Water evaporates in the warm air, turns back into liquid when it comes in contact with the cold air. अच्छा, आपने ग्लास ऑफ वाटर लेना है, कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं ग्लास में जिससे कि वो कूल हो जाए.
फिर आपने ग्लास को रखना है सन में कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के आपके बाहर आपको नजर आएंगे। तो ये आपका कहाँ से आया वाटर? एक्चुअली इट केम फ्रॉम द एयर। Formation of cloud. A large collection of very tiny droplets of water is called cloud. Water is mixed in air, but near the ground it is usually in the form of water vapor. When the hot air moves upwards, it expands and cools. When it becomes sufficiently cold, condensation takes place. Tiny droplets of water are formed which are carried by the water. Minute pieces of dust that are floating in the air help in the formation of water droplets. 1 billion of these droplets come together, they become a visible cloud. The clouds are a mixture of water droplets, air and dust. देखिए जो लार्ज कलेक्शन होता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वाटर का, उसे हम कहते हैं क्लाउड। वाटर जो आपका मिक्स होता है एयर में ग्राउंड के पास, ये आपके वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। तो जब हॉट एयर मूव करता है ये एक्सपेंड होके कूल हो जाता है, फिर ये इतना कोल्ड हो जाता है कि आपका कंडेंसेशन होता है। फिर जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वाटर के वो आपके बनते हैं, जिसको कौन कैरी करता है? एयर। जो माइन्यूट पीसेस होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे पीसेस होते हैं डस्ट के, जो आपके एयर में फ्लोट करते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जब ये बहुत सारे बिलियंस ऑफ जो ड्रॉपलेट्स होते हैं साथ में आते हैं तो बनाते हैं क्लाउड को। तो इसीलिए क्लाउड्स आपके मिक्सचर होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर एंड डस्ट के। The upper atmosphere becomes very cold at some places and the liquid droplets freeze into ice. Different types of clouds are formed at different heights. Even at ground level, sometimes during winter, moist air gets cooled and condensation of water vapor occurs. This results in fog and mist. अच्छा, upper atmosphere में क्या होता है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके फ्रीज हो जाते हैं आइस में। तो जो डिफरेंट हाइट्स होती है क्लाउड्स की, वो डिफरेंट हाइट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं डिफरेंट हाइट्स पे बनते हैं। जैसे कि आपके ग्राउंड लेवल पे बनते हैं, कई बार विंटर के टाइम पे मॉइस्ट एयर कूल हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, इसकी वजह से आपका होता है फॉग एंड मिस्ट। Lightning and thunder. You might have seen flash of light in clouds during the rainy season. This flash of light is often followed by thunder of clouds. Hot, moist air rises and gets cooled. Cold air with water droplets moves downwards. The hot and the cold air rub against each other. Due to the friction, electrostatic charges built. This was noticed by Benjamin Franklin for the first time in 1752. देखिए आपने कई बार फ्लैश ऑफ लाइट देखी होगी क्लाउड्स में रेनी सीजन के टाइम। फिर इसके बाद आपको थंडर सुनाई देते होंगे क्लाउड्स के। तो जो हॉट मॉइस्ट एयर होती है वो राइज होती है, कूल हो जाती है। तो कोल्ड एयर जो है वाटर ड्रॉपलेट के साथ वो डाउनवर्ड मूव करती है। तो जो हॉट एंड कोल्ड एयर है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है क्लाउड्स में, और इसको सबसे पहले नोटिस किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में। During a storm, if the air moves very rapidly in the sky, extremely large electric charges are produced. Since the air runs against the clouds very rapidly, a large force of friction is created, which charges the clouds with electric charges. अब storm के दौरान क्या होता है कि air जो है बहुत rapidly move करती है और बहुत ही ज़्यादा आपके लार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब एयर जो है वो रन करती है अगेंस्ट द क्लाउड, तो एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो कि चार्ज कर देता है क्लाउड को विद इलेक्ट्रिक चार्जेस। द स्मॉलर वाटर पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स यूजुअली एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, द लार्जर ड्रॉपलेट्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो जो आपकी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, जबकि जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। एयर करेंट्स देन पुश the positively charged droplets upwards while the negatively charged droplets stay downwards. अब इसके बाद जो एयर करंट है वो क्या पुश करता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स है ऊपर की तरफ एंड जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो डाउनवर्ड ही रहे। इलेक्ट्रिक चार्ज. A strong force of attraction is exerted by the positive and negative charges in the clouds. The air between them loses its insulation and the charges tend to flow through them. This phenomenon is called discharge. Such a discharge heats up the air very much and it starts glowing and flashing. It is a flash that we see as lightning. The air expands on heating. The rapid expansion of air along the path of electric flow produces the sound of thunder. Although both lightning and thunder occur together or simultaneously, we hear the thunder a few seconds later because light travels faster than sound. अच्छा, strong force of attraction है वो exert किया जाता है पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस हैं क्लाउड्स में। तो जो एयर होती है इनके बीच में अपना इंसुलेशन लूज कर देती है एंड चार्जेस जो होते हैं आपके वो फ्लो करते हैं इनके थ्रू। तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज डिस्चार्ज। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये हीट अप कर देता है बहुत ज़्यादा एयर को एंड देन ये ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। तो ये जो फ्लैश आपको नजर आती है दैट इज लाइटनिंग। एयर आपकी एक्सपेंड होती है हीटिंग पे, तो जो रैपिड एक्सपेंशन होता है एयर का अलॉन्ग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है थंडर। हालांकि आपकी जो लाइटनिंग एंड थंडर है वो साथ में होते हैं, बट
थंडर हमें कुछ सेकेंड्स के बाद सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है आपकी साउंड से फास्टर। Lightning conductor. At times, a discharge may become so powerful that it can destroy and burn tall buildings or trees. To prevent tall buildings from the attack of lightning, we use a device known as lightning conductor. A long, thick metallic rod with sharp spike is fixed at the highest point of the building. The lower end of the rod is connected to a large copper plate buried deep in the earth. This method is known as earthing. अच्छा, कई बार क्या होता है कि डिस्चार्ज इतना पावरफुल हो जाता है कि ये बिल्डिंग्स या ट्रीज जो लंबे लंबे होते हैं आपके, उनको हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए बड़ी आपकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको लाइटनिंग के अटैक से प्रिवेंट करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है लाइटनिंग कंडक्टर। ये आपका एक थिक मेटालिक, लंबा सा थिक मेटालिक रॉड होती है जिसके शार्प स्पाइक्स होते हैं, बिल्डिंग के हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उस पर लगाया जाता है। तो जो लोअर एंड होता है रॉड का, वो आपका कनेक्टेड होता है एक कॉपर प्लेट से जो अर्थ के अंदर बैरिड होती है। तो दिस मेथड इज नोन एज earthing. When a highly charged cloud passes over a tall building, it induces an opposite charge on the spikes. This charge cannot be held up by the metal and all of it goes safely to the earth to the copper strip. Thus, the building is protected from attack. तो जब कोई highly charged cloud जो है इस टॉल बिल्डिंग से पास होता है तो ये एक ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है स्पाइक्स में। फिर ये जो चार्ज होता है ये आपका क्या होता है कि ये सेफली आपका अर्थ में चला जाता है कॉपर स्ट्रिप के थ्रू। तो बिल्डिंग जो है फिर आपके लाइटनिंग अटैक से प्रोटेक्ट हो जाती है। रेन एंड हेल स्टॉर्म. The water vapor, as discussed earlier, mixes with the air. Winds carry the moisture to cooler places. The water vapor condenses and small droplets of water are formed. As more and more water vapor cools into the clouds, the water droplets that form the clouds become larger and larger. These droplets freeze at higher altitudes. वाटर वेपर जो है आपके मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। विंड जो होती है मॉइस्ट एयर को कैरी करती है कूलर प्लेसेस में। तो जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस होके बनाते हैं छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स। अब आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर वेपर्स होंगे कूल होंगे क्लाउड्स में, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्लाउड्स बनाएंगे और वो बड़े बड़े होते जाएंगे। तो ये हायर एल्टीट्यूड यानी अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हैं फ्रीज हो जाते हैं। The droplet gets so big that the swirling winds in the atmosphere can no longer hold them up. The droplets fall from the sky. This is called precipitation. These heavy drops fall to the earth due to gravitational forces. The falling condensed water molecules that come down as rain, snow, sleet or hail depend on conditions in the atmosphere. If the ice pieces do not melt before falling, there can be hailstorms. अब ये droplets इतने बड़े हो जाते हैं और swirling wind की वजह से क्या होता है कि वो उनको होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर ड्रॉपलेट जो है स्काई से आपके जो बूंदें होती हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं बारिश के रूप में। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये जो फिर आपका जो फॉलिंग कंडेंस वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपका आता है जैसे रेन, स्नो या स्लीट या हेल, ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होती है। कई बार आइस पीसेस जो है ना मेल्ट नहीं हो पाते फॉल होने से पहले, तो उनसे बनता है फिर आपका हेल स्टॉर्म। वाटर साइकिल. The water cycle is a way the earth uses and recycles water. It is controlled by the sun, which produces energy in the form of heat. This heat energy makes the water from the earth's surface warm and evaporate. The water vapor high up in the air eventually gets cooled and changed back into liquid, forming clouds. The water condenses into tiny droplets. Water cycle जो है आपका एक क्या होता है कि जिसमें अर्थ वाटर को यूज़ करती है देन रिसाइकिल करती है वाटर को। इसको कंट्रोल करता है सन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है हीट की फॉर्म में। फिर जो हीट एनर्जी होता है उसकी वजह से जो अर्थ में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इवेपोरेट होती हैं, राइट। फिर इसके बाद जो वाटर वेपर होगा एयर में हाई जब जाते हैं वो इवेंचुअली कोल्ड होके फिर ये लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं क्लाउड्स। फिर वाटर जो है आपका टाइनी ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाता है। द ड्रॉपलेट्स मर्ज इनटू वन अनदर एंड मेक बिगर हेवियर ड्रॉप्स ऑफ वाटर which fall to the ground as rain. The rainwater flows down the hill towards low-lying areas such as rivers and lakes. Then the rivers carry water towards the sea. Thus a full cycle is completed. Now we can say that water cycle is a process of evaporation and condensation in a cycle. देखिए evaporation होता है, then condensation होता है, फिर उसके बाद जबकि जो droplets बनी वो बड़ी हो जाती हैं and बड़ी होकर फिर उनको clouds hold नहीं कर पाते हैं, तो फिर rain as a rain वो ground पे आपके पड़ती है। तो इस तरह से आपका जो है पानी वापस से फिर आपका कहाँ चला जाता है, रिवर्स, ओशंस एंड लेक्स में, और इस तरह से जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब वाटर साइकिल है वो आप इसमें आपका प्रोसेस होता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट.
Ice is water in the solid state. Water exists in solid state as snow, frost, sleet, hail, etc. When the snow gets compacted, it is called ice. In the solid state, the molecules are arranged very close to each other. That is, these are very tightly packed. This is because there is a strong force of attraction between them. The application of force does not change the volume of solids. What ice आपका solid state है, आपको पता है. इसके अलावा आपके देखिए सॉलिड स्टेट्स और गए, ये सारे आपके सॉलिड स्टेट्स हैं. और जब आपकी स्नो जो कॉम्पैक्ट हो जाती है तो ये आइस होती है. जब राइट सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स आपके बहुत ही एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज होते हैं, यानी टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. Liquid state. In liquid state, most of water occurs as rivers, lakes, seas, and oceans. In the liquid state, the molecules are not located very far apart because the attractive forces are not negligible. These forces are capable of preventing molecules from going too far apart. Thus, liquids have a fixed volume. अब आपका water जो liquid state में होता है, liquid का क्या होता है, एक definite volume तो होता है, but fixed shape नहीं होता है. Gaseous state. In the gaseous state, water exists as water vapor in the air. In the case of gaseous state, the constituent molecules are quite far apart because there is a negligible attractive force between the molecules. Gases do not have a fixed volume because a slight application of force can bring the molecules closer. That is, the volume decreases. अब gaseous state जो है आपका, जैसे water vapor है आपका air में, that is the gaseous state of water. Gaseous state में क्या होता है कि इनका कोई fixed volume नहीं होता gases का, okay? कोई fixed shape नहीं होता है. और इनका देखिए फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है. Points to remember. Water is the only substance on the earth that exists in all three states, solid, liquid and gas. The process of changing liquid water into vapor form is known as evaporation. Water evaporates, rises up, and due to enough cooling changes into liquid. This process is called condensation. The parameter that indicates the amount of water vapor in the air is called dew point. Cloud is a large collection of very tiny droplets of water. The lightning seen during the rainy season is due to the discharge of electricity breaking the insulation of air. Water cycle is a constant circulation of water between Earth and its atmosphere. The device used to prevent buildings from being attacked by lightning is called lightning conductor. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.